special topic today, as well as a very special panel, because each one in this panel is known for speaking from the heart. Temple versus toilet, sanitation versus salvation. It's a debate that's endless in this country. I would like to invite my panelists on stage. To begin with, the man who is the Union Minister for Rural Development. He's known for speaking from his heart and has had a special take on this topic. He created quite a buzz at that time, but had all the fun when Narendra Modi spoke on the same topic and said, it is first Shauchalay aur uske baad Devalay. Please welcome Jairam Ramesh. The next man we have with us is the third time elected Chief Minister of Madhya Pradesh, the son of a farmer who's focused on his state, and his relentless work has made a place for him, and people have elected him back. Please welcome Shivraj Singh Chauhan. My next guest is very interesting. She's known to be a firebrand leader. Again, always speaks from her heart, gets into trouble, eases out of it, stands on her own, makes a place. Yes, we have Uma Bharti. Please welcome Uma Bharti. The final flavor in my panelist is going to come with none other than the man called Jack Sim. He's known for removing the global taboo that surrounded toilet. He's the founder of the Singapore Restroom Association and the World Toilet Organization. Please welcome Jack Sim. I think I'll sit there. I would like to begin the session with you, sir, Mr. Jairam Ramesh. It was quite interesting to hear your take on the entire topic, because you said that a toilet was supposed to be a more pious place, if I'm correct, than a temple. What did you mean? Well, in a country that still has over 60% of women defecating in the open, and in a country in which sanitation practices has led to very severe malnutrition amongst children, I think we need to make hygiene and sanitation a national obsession. Cricket is a national obsession, politics is a national obsession, Bollywood is a national obsession, but sanitation has to also become a national obsession. And my purpose when I was the minister I made that statement incidentally in Madhya Pradesh. The purpose of my making that statement was to arouse a very, sleepy nation when it comes to sanitation. We take things for granted. And in order to create this junoon, this national obsession, and I do believe that we need to pay far greater attention. I'm not the first one who has said this. Mahatma Gandhi said this many, many years ago. And I think the amount of time and public debate that takes place on issues of spirituality, I hope the same attention is paid to issues of sanitation. I mean, that was my intention. I think we have created a national awareness. Some states have become open defecation free. Sikkim has become India's first open defecation free state. Kerala is almost 95% open defecation free. Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Burhanpur district in Madhya Pradesh is about to become open defecation free. Churu district in Rajasthan is about to be open defecation free. I think we need to set ourselves a national mission that in 10 years from now, no more than 10 years from now, we will eliminate this social evil of open defecation. This open defecation is not only cause problems for the dignity and security of women, but there's also a link between open defecation and malnutrition.
sanitation and malnutrition because of this phenomenon of tropical enteropathy. And I think all political parties today have accepted the fact that sanitation is crucial, and I'm sure that this is one issue that will bind all political parties. I think you've gently tapped your back on this one. You think Narendra Modi followed you? Well, see, let's have one session without politics and Narendra Modi, please. Okay? I think this sanitation is far too serious an issue to trivialize it with political leaders or political parties. Mr. Shivraj Singh Chauhan is the Chief Minister of Madhya Pradesh, who I think is a political leader in our own right. And I think across India today there is a recognition that we must eliminate open defecation. And building toilets, states like Bihar, states like Odisha, states like Madhya Pradesh, states like Maharashtra have taken it up as a national challenge. Not just building toilets, because we built toilets in the past. You got to get them to use the toilets. You got to build toilets. You got to get people motivated to use the toilets, make sure that water is available, make sure that sanitation practices are hygienic. So I do feel that irrespective of who may have said what first, the fact of the matter is that today across the political spectrum, people recognize the criticality, the crucial importance of sanitation, and that's a huge step forward. शिवराज सिंह चौहान जी, आपने इस विवाद से अपने आप को दूर रखा है. आपकी कोशिश ये रही है कि आपके काम से मध्य प्रदेश की जनता और देश को आप समझा सकें. क्या है वो विकास का आपका जो फॉर्मूला रहा है, और जैसे आपके भी कुछ जिलों की बात उन्होंने की डेफिकेशन फ्री करने का ओपन में, ये कैसे बढ़े आप? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि विकास और अध्यात्म एक दूसरे को काटता नहीं, एक दूसरे का समर्थन करता है. ये अगर कोई सोचता तो गलत सोचता है कि दो अलग चीजें हैं. शरीर की शुद्धि भी चाहिए तो मन की शुद्धि भी चाहिए, बुद्धि की भी चाहिए तो आत्मा की भी चाहिए. शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समुच्चय मनुष्य है, तो शरीर की शुद्धि को सब महत्व देते हैं. लेकिन हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो काम किया है, सिवाय इसके कि हम विकास करें और विकास भी संस्कारों के साथ करें, हम लोगों ने प्रयास किया. आप जानते हैं मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट पिछले 8 साल से लगातार, और आज भी जो मेरे पास समाचार आए, फिर मध्य प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 का राज्य हिंदुस्तान में डबल डिजिट में हमारी ग्रोथ रेट रही है. एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 18-19% है, जिसमें कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन वो हम लोग करके दिखा रहे हैं. हम लोगों ने वो मध्य प्रदेश जो कभी पिछड़ा और बीमारू राज्य कहलाता था, आज उस मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है. आज उस मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, एरिगेटेड लैंड का जो एरिया था, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में आई थी, केवल 7.5 लाख हेक्टर था. उमा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, आज बढ़ा के हमने 26 लाख हेक्टर किया. हमने जब मालवा, रमेश जी जानते होंगे, मालवा में पानी का संकट है, मालवा रेगिस्तान बन जाता, हमने नर्मदा जी के पानी को 350 मीटर लिफ्ट करके मालवा में लेके आए, छिपरा जी में मिलाया. अब नर्मदा जी के पानी को अगर हम छिपरा में लेके आए हैं तो 16 लाख एकड़ जमीन में हम सिंचाई भी करेंगे, गंभीर, काली सिंध, पार्वती नदियां और जोड़ के. हम इंडस्ट्रियल वाटर भी हमको प्राप्त होगा, ड्रिंकिंग वाटर भी हमको मिलेगा, और नर्मदा जी छिपरा जी में आएगी, और 2016 में सिंहस्थ आएगा, वहां आनंद से लोग स्नान भी करेंगे और पवित्रता का एहसास भी करेंगे. कहां दोनों विरोधी है. और इसलिए मैं कहता हूं, हम लोगों ने जो काम किया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं मानता हूं कि महिला सशक्तिकरण आज के देश की जरूरत है. और इसलिए मध्य प्रदेश में बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने का सवाल हो, बेटी का कन्यादान की योजना या निकाह की योजना बनाने का सवाल हो, पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो कापियां किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल पर बैठ के जाए, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई की हर साल 5,000 रुपये और पाए, और बड़ी हो जाए तो शादी भी हम करेंगे, कन्यादान योजना, निकाह योजना, 50% रिजर्वेशन. मैं सुनाऊंगा तो बड़ी लिस्ट है. अब इसको धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते हैं. अगर हम बेटी के लिए काम करते हैं और उसको विकास की दृष्टि से भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं. आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण हमने करने की कोशिश की है. एक इशू की तरफ और मैं ध्यान देना, वो भी मैं मानता हूं कि धर्म भी है और विकास भी है. मैं आज मध्य प्रदेश से आ रहा हूं, मन बड़ा दुखी है, क्योंकि पिछले दिनों जो प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश में आई, हमारे लगभग 25,786 गांव ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण पूरी तरह से तबाह हो गए, चौपट हो गए. लेकिन मन में तक, क्योंकि अगर अन्न के दाने किसान के खेत में बिखरते हैं तो केवल अन्न के दाने नहीं बिखरते, किसान की जिंदगी बिखरती है, उसके बच्चों का भविष्य बिखरता है. और इसलिए हम जब खेती को ठीक करने की बात करते हैं तो मन में एक चीज और होती है कि किसान की सिसकियां दिल्ली में सत्ता के गलियारों में
क्यों सुनाई नहीं देती, या मीडिया की खबरों में उतनी प्रमुखता क्यों नहीं पाती। कई बार मन में टीस होती तो मन में ही आता कि एजेंडा विकास का है तो विकास के साथ साथ लोक कल्याण का भी, और लोक कल्याण की जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म उससे अपने आप जुड़ जाता है। ये एक दूसरे को काटते नहीं है। रमेश जी यहाँ बैठे, फसल बीमा योजना हमारी ऐसी है कि इसमें बीमा कंपनियों को प्रीमियम किसान जमा करते हैं, लेकिन बदले में उनको कभी कुछ नहीं मिलता। 2.5% कमीशन काटने के बाद वो कहते हैं जितना प्रीमियम में नुकसान हुआ हम केवल उतना देंगे, बाकी केंद्र सरकार जाने, राज्य सरकार जाने। फसल बीमा योजना व्यवहारिक क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिविजुअल किसान का जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई क्यों नहीं होनी चाहिए जैसे बाकी मामलों में होता है? तो ये विषय भी ऐसे हैं जिनको मैं विकास से भी संबंधित मानता हूं, लोक कल्याण से भी संबंधित मानता हूं और अध्यात्म से भी संबंधित मानता हूं। लोगों का भला करना, कल्याण करना, यही अध्यात्म है और ये विकास का उद्देश्य। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, विरोधाभास नहीं है, ये आप मानते हैं। उमा भारती जी, हालांकि आज मुझे पता है आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप मुस्कुराएं, क्योंकि आपके बगल में आज शिवराज जी हैं। आप चाहती हैं कि ऐसी कोई खबर न हम हमेशा साथ रहते हैं और मुस्कुराते ही हैं, ये भ्रम है लोगों को। उमा जी, माइक यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं जयराम रमेश जी। उमा जी, देवालय या शौचालय क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जब जयराम रमेश ने ये बात कही और जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही तो ये लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के कही है, कोई नास्तिकता के भाव से या किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कही। और जयराम रमेश जी के साथ मेरा टकराव हो जाए अगर ये सोच के आपने मुझे बुला लिया है तो भूल जाइए इस चीज़ को, क्योंकि हिमालय, गंगा और पर्यावरण में जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री के नाते से जो काम किया है और मुझे जो प्रेरणा दी है वो जीवन भर मेरे लिए आगे भी काम आएगी। और तीसरी बात जो अभी आई, मान लीजिए दोनों नेताओं के मुंह से ये बात निकली तो वो ऐसे निकलती है कि अचानक कोई बात निकलती है, इरादे वैसे नहीं होते। लेकिन यहाँ डिबेट में अगर ये बात आई है तो मुझे थोड़ा सा समझना है और मैं उस पर अपनी राय दूंगी। बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि जितना समय आपने जयराम रमेश जी को दिया, शिवराज जी को दिया, उतना तो मुझे सुन ही लेंगी आप और आप लोग भी सुन लेंगे। मुझे ये कहना है कि ये बात हम डिबेट में क्यों लाए हैं, इसलिए शायद लाए हैं क्योंकि हमें लुत्फ आ रहा है क्या किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में, हम उसमें कुछ मजे ले रहे हैं क्या, क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट करेंगे कि देवालय और शौचालय बोला, फिर उसमें बोलने में हमसे कहीं कोई भूल हो जाएगी या हमारा और जयराम रमेश का कोई टकराव हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ी और आगे खबरें बढ़ेंगी, चर्चे होंगे और फिर उसका एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। तो ये भाव हमें मन में नहीं रखना है, क्योंकि इन दोनों बातों की तुलना नहीं हो सकती। और इसलिए जब आपने ये जो प्रश्न किया है शौचालय या देवालय, दो जगह ऐसी होती है जो अभी शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से कही। एक चीज है मन की शांति, एक होता है शरीर के तनाव को, दबाव को कम करना। व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेश्यालय जाता है और मन की शांति के लिए माँ की गोदी में सिर रखता है। हम माँ और वेश्या की तुलना नहीं कर सकते, तो जैसे हम माँ और वेश्या की तुलना नहीं कर सकते, इसी तरह से हम शौचालय और देवालय की तुलना नहीं कर सकते। एक समझ लेता। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि पहले जो समाज की संरचना थी या जो विकास था वो हर एक देश के साधन और उसकी विशेषताएं दोनों को जोड़ के ही डेवलपमेंट होता है। उस देश के साधन क्या हैं और उस देश की विशेषताएं क्या हैं, और उसके आधार पर फिर उसकी फिलॉसफी तय होती है, फिलॉसफी के आधार पर आइडियोलॉजी तय होती है, आइडियोलॉजी के आधार पर वैल्यूज ऑफ लाइफ तय होती हैं, उसके आधार पर स्टाइल ऑफ लाइफ तय होती है और उसके साथ ही गोल ऑफ लाइफ तय होती है। भारत की जो संरचना है, भारत का जो पर्यावरण है, भारत में जो सूर्य की रोशनी है, जो हवाएं हैं, जो समुद्र के किनारे हैं और जिस प्रकार से है, उसमें पहले एक संरचना थी जिसमें खाना अंदर होगा और पाखाना बाहर होगा। अभी हमने उल्टा कर लिया है, कुछ समय से पाखाना अंदर है और खाना बाहर है, लेकिन संरचना इसी प्रकार की थी और वो संरचना अपने अपने प्रकार की है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार होती है और उसकी अपनी विशेषताएं और उसके अपने साधनों के अनुसार होती है। इसलिए आज की जो आवश्यकता है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। तो मैं पहले तो इस बहस को इस तरीके से करना ही अनावश्यक मानती हूँ। इट इज सो अननेसेसरी।
इट इज सो इररिलेवेंट कि हम एक साथ ये दो शब्द बोलें कि देवालय या शौचालय में, इसी को बहुत गलत मानती आपने हूँ। कहा था आप उनसे हाँ, लड़ेंगी भिड़ेंगी नहीं, पर आपने हाँ, उन्हीं को हाँ, ललकार ना, दिया। मैं उनके मुंह से जो निकला, नरेंद्र मोदी जी के या जयराम जी के मुंह से, उनके मन में किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी। लेकिन अगर हम इस बहस को इस तरीके से बढ़ाएं, उसकी जगह पर हम इस पर जाएं कि आज महिला दिवस है, जैसा कि शिवराज जी ने कहा, और महिलाओं के लिए शौचालयों की बहुत बड़ी कठिनाई है। बहुत बड़ी आबादी को बेपर्दा होकर के बाहर खुले में जाना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी कठिनाई, उस पर हम विचार करें तो अलग बात है। लेकिन देवालय और शौचालय जैसे शब्दों को हम एक साथ बोलते हुए करेंगे तो मैं फिर वही बोल पाऊंगी जो कि मैंने पहले कहा है, तो वो हम ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा जयराम जी से इनने पूछ इतनी लूं? बोला, इनने इससे ज्यादा बोला था मेरे से, आपने अभी मैंने मुझसे जितना ज्यादा बोला बोल ना ना दिया। ना, इससे थोड़ा ज्यादा बोला था, इससे थोड़ा ज्यादा बोला था। दूसरा मुझे आपको ये कहना है कि विकास किसके लिए है? शांति के लिए। डेवलपमेंट किसके लिए है? शांति के लिए। लोग अच्छे घर क्यों बना रहे हैं? लोग अच्छी गाड़ियां क्यों खरीद रहे हैं? अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? होटलों में खाना क्यों खा रहे हैं? शांति के लिए। तो शांति कहाँ से निकलती है? अध्यात्म से निकलती है। सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? डेवलपमेंट से होती हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जरूरत है, लेकिन जो मूल चीज है वो शांति होती है। तो अध्यात्म भी एक बेस रखता है, उसका जीवन में एक महत्व होता है। कई हमारे देश की तो कई राज्यों की इकोनॉमी ही मंदिर से है। मैं दो राज्य विशेष रूप से बता सकती हूँ, वैसे बहुत राज्य हैं जो टेम्पल इकोनॉमी से चल रहे हैं। तमिलनाडु को देखिए आप, उत्तराखंड को देखिए आप किसी राज्य को ये नहीं कह पाएंगे कि ये टॉयलेट इकोनॉमी से चल रहे हैं, टेम्पल इकोनॉमी से वो राज्य चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो ये पूरी की पूरी बहस ही गलत लगी है। जैसे मजे लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए ये बहस शुरू की गई हो, मैं इसको अनावश्यक मानती हूँ। ये पूछूंगी जयराम जी से, लेकिन उससे पहले मिस्टर जैक्सन, what made you think about this? Even the World Toilet Day, as you celebrate it, you want to remove this taboo around toilet. What is the thought behind it? You want to begin with an audio-visual clipping? Okay. Okay. You can Let's show play the video. audio-visual clip, please. When we are children, our parents tell us not to talk about shit. This is a really serious problem. What you don't talk about, you cannot improve. A lot of people call me Mr. Toilet. I'm really proud when I hear that because it gives an identity to the work that I do. 40% of the world population still do not have access to simple toilets. Shit is like fire. If you manage properly, the fire can cook your meal. If you don't manage it, it burns down your house. If you manage it, it becomes a fertilizer. If you don't manage it, it kills you. About 90% of all the surface water in India are contaminated by feces. 1.5 million children under 5 a year in the world die unnecessarily. You have to have clean water, you have to have safe sanitation. A rich man staying next to a slum. The flies doesn't know a poor man from a rich man. So the rich man is probably eating the shit of the poor man. You better help them get toilets or you will eat their shit. Think about it. We are hosting the World Toilet Summit. This has been an international event every year since 2001. The people say, why should I use the toilet? It's fresh air outside. I can chit-chat with my friend while I'm squatting there. Our big breakthrough will happen when we look at the poor as if they are customers. When we have to sell them products that are very beautiful and sexy. Once this becomes object of desire, if you don't have, you're not keeping up with the Jonases. We want toilets to become a status symbol for the poor so that they feel proud to own a toilet. Just like a Louis Vuitton handbag. So really, We are actually breaking the taboo on sanitation in the global news. World Toilet Day is 19 November every year. We have the big squad. We are protesting the plight of the 2.5 billion people that still do not have access to toilets. The fact is, I think about toilet every moment. A life is only 80 years. I'm 52. If I'm going to spend 28 years consuming ostentatiously just to have a diamond watch that I can't read the time because it's too sparkling, it makes no sense. Doing social work that is creating some impact, I think this
better to die like that. I think we can see the day that everybody on planet Earth will have access to clean toilets any day, anytime. Talk of fire. Mr. Sim, what is your ambition? What are you aiming at? My ambition is that toilet must be a normal subject one day, because going to the toilet is so enjoyable. You can ask the last panelist or the expert to survey people before they go to toilet and after. They're all happy. So if you are unhappy and after that you become happy, this is a luxury, this is an enjoyment, and this is a culture. You go to the toilet 6 to 8 times a day. You don't even count. Right? You spend 3 years of your whole life inside the toilet. Now, you have to solve this problem by making toilet sexy. And this Indian Today conclave is the best place, because I saw movie star, I saw politician, I saw celebrity. We have to mobilize all these people. Bollywood, Hollywood, cricket players, politicians, all of them, to create a revolution to make You're toilets sitting next sexy. to the two very big politicians, with these very big politicians, two of them who can actually motivate people, do something. Yes, but we need all of them, everybody, because if we create a revolution, toilet becomes sexy. Once it's sexy, people will ask, oh, you mean you don't have toilet? I have. And then jealousy will drive ego, pride. Then the market moves. Because it is unspeakable. The human being, why did we go to the shopping center to buy Prada and Louis Vuitton so expensive? Because we are worried about our social ranking. Now, why does the poor have cell phone? Because they're worried about their social ranking. But if we make toilet sexy, colorful, beautiful, paint a Isfahan, make peacock, lotus, all outside the toilet, this will change the whole demand. Then the supply will come once there's demand. शिवराज जी, मैं चाहती हूँ आप इस पर रिएक्ट करें, जो बातें इन्होंने कही हैं उस पर. माइक. कि जो उन्होंने कहा है उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. उससे अलग हम हैं ये कहने की जरूरत भी नहीं है. मैंने पहले ही जो अपनी मूल विचार व्यक्त किए थे, मूल भावनाएं, कि दोनों तरह की चीजें अगर हम सोचते हैं, चाहे वो सैनिटेशन का सवाल हो, चाहे अध्यात्म का सवाल हो, ये दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण और एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परस्पर पूरक हैं. ये साथ साथ आवश्यक है. लेकिन जयराम जी, जब आपने बोला था तो आप तो विवाद शुरू करना चाहते थे. नहीं, ऐसा नहीं. देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर इसको राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना बहुत जरूरी था, और उस बयान के बाद वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया. मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, पर आज सभी लोग शौचालयों की बात कर रहे हैं, और मेरा यही मकसद था. विद्या बालन को मैंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनसे मैंने फिल्म बनवाए, ताकि लोगों में जानकारी पहुंचे कि शौचालय हम क्यों बना रहे हैं, शौचालय का क्या महत्व है. और विद्या बालन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि करीब 1.5 साल तक उन्होंने खूब मेहनत की. बैतूल, शिवराज सिंह जी को याद होगा, बैतूल जिले में एक गोंड औरत थी, अनीता नारे. वो अपने ससुराल गई और 2 दिन बाद वापस लौट आई, क्योंकि उनके ससुराल में शौचालय नहीं था. विज्ञान भवन में मैंने अनीता नारे को तत्कालीन राष्ट्रपति से एक पुरस्कार से सम्मानित किया था, और उसके बाद मंत्रालय से एक हमने नारा दिया, शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं. और उस नारे से हरियाणा के ग्राम पंचायतों में, हरियाणा में जहां बड़ा मुश्किल है काम करना, क्योंकि वहां आप जानते हैं वहां खुले में शौच करने की महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी. आज 2.5 साल बाद हरियाणा के करीब 25% ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हुए हैं. हमारे देश में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से कुल
7 या 8% ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त हो सकते हैं। पर इसको एक राष्ट्रीय अभियान बनाना है। महाराष्ट्र में एक संत गाडगे बाबा महाराज हुआ करते हैं और संत गाडगे बाबा महाराज गांव-गांव जाते थे और कहते थे आपकी मुक्ति शौचालय में है, आप साफ घर रखिए, शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, भगवान आपको सुरक्षित रखेगा। यही भावना हमें जगानी है हमारे देश में अगर हमें 10 साल में भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। लेकिन आप महाराष्ट्र और हरियाणा क्यों बार बार जा रहे हैं? दिल्ली में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो खुले में शौचालय, इतने वर्षों में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, दिल्ली में है और मैंने एक और बयान दिया था जिससे उसकी भी मेरी आलोचना हुई थी कि हमारे दुनिया में सबसे बड़ा ओपन टॉयलेट भारतीय रेल है। सबसे बड़ा ओपन टॉयलेट हमारा रेलवे सिस्टम है। 50,000 कोच, उसमें शौचालय आप देखिए ओपन सिस्टम है और सीधा जाता है जमीन पर। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि हर एक भारतीय रेल में 50,000 डिब्बों में हम सही तरीके से शौचालय बनाएं? वो भी एक खुले में शौच का एक तरीका होता है। तो भारतीय रेल हो या हमारे बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, यहाँ में हमें शुरू करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज ग्रामीण भारत में ये जागृति आई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने निर्मल भारत अभियान को स्वीकारा है और उसको आगे ले चल रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगर हम खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाएं तो हमें खुद तसल्ली होगी, हमें खुद आत्मविश्वास आएगा कि हम 10 साल के अंदर ये मकसद हम पूरा करेंगे। उमा भारती जी, आपने कहा कोई कॉन्फ्लिक्ट, आप विरोधाभास नहीं देखती और एक साथ दोनों का जिक्र नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने किया तब तो बहस शुरू हुई, क्योंकि आप तो मंदिर राग में अटकी हुई है आपकी पार्टी, वो तो वहां से निकलने को तैयार नहीं है, उसके लिए तो ये सब मुद्दा है ही नहीं। अभी तो मैं मौके का लाभ उठाऊंगी और लाभ में ये उठाऊंगी कि मैं जयराम जी से भी कहूंगी और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं उनसे भी कहूंगी, गांव में निर्मल ग्राम की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा परेशानी अभी दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में है औरतों को बहुत, क्योंकि जो मजदूरों की स्त्रियां हैं जिनके घर नहीं हैं और जो करोड़ों की संख्या में इन बड़े शहरों में आए हुए हैं, उनको दिन में लघुशंका करने के लिए भी जगह नहीं, बड़ा टॉयलेट जाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो आज की बहस में से अगर यही बात आ सके, मैं तो ये कहती हूँ कि आप सारे, चाहे 2 कमरे का भी घर बन रहा हो, उसके लिए ये रेगुलेटरी कर दीजिए कि उसको एक टेम्परेरी टॉयलेट मजदूरों के लिए और उनकी पत्नी और बच्चों के लिए बनाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई घर नहीं बन सकता, कोई दुकान नहीं बन सकती, कोई मार्केट नहीं बन सकता। यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको 2 मिनट बाथरूम होल्ड करनी पड़े तो क्या हालत होती है। जिस औरत को सवेरे से बड़ा टॉयलेट लगता होगा और शाम तक वो होल्ड करती होगी या लूज मोशंस होते होंगे, कहीं जा नहीं पाती होगी, उसकी तड़पड़ाहट की हम कभी कल्पना कर सकते हैं क्या? इसलिए मैं तो अभी इसमें आना चाहती हूँ कि कितनी अच्छी बात होगी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक महत्वपूर्ण मंत्री बैठे हैं, इसकी व्यवस्था में अगर मेरे हाथ में बात होगी ना तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ में एक बिल्डिंग नहीं बन पाएगी जब तक वहाँ 10 टॉयलेट, चाहे टेम्परेरी होने चाहिए 10 महिलाओं को जाने के लिए, नहाने के लिए। रुक जाती है ना। राहुल गांधी जी भी 9 से 12 सिलेंडर मांगते हैं प्रधानमंत्री से। विकास मंत्री था मैडम, मैं शहरी विकास विभाग मेरे जिम्मेदारी नहीं थी। अरे कह तो दीजिए आप अपनी तरफ से कैबिनेट में। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे शहरों में, हमारे महानगरों में खुले में शौच मुक्त आज भी बहुत खुले में शौच मुक्त कराना है। और भोपाल से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? ट्रेन का ना, भोपाल से शुरुआत नहीं करते हैं। ट्रेन में ट्रीटमेंट प्लांट ट्रेन में लग सकते हैं, उसके लिए सीवर के जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो ट्रेन के अंदर। मुझे एक काजमी करके IIT के एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े ट्रीटमेंट प्लांट के, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि जो ट्रेनें हैं उनकी गंदगी अगर रोकनी है तो वो ट्रेन के अंदर भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं और ट्रेनों को साफ रख सकते हैं। मैं अभी बता दूं आपको, अभी जो डिब्बे बन रहे हैं भारतीय रेल के डिब्बे, 4000 डिब्बे हर साल बनते हैं। उन डिब्बों में DRDO से जो बनाया गया है बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। समस्या ये है जो पुराने हमारे डिब्बे हैं 50,000 डिब्बे, उनमें हम रेट्रोफिट ये बायो टॉयलेट कैसे करें, उसका काम 6-7 साल लगेगा। पर जो आज नए ट्रेन लगाए जा रहे हैं, हमारे भारतीय रेल नेटवर्क में 9 ऐसे ट्रेन हैं जहां खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, नए बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। और एक दिन मैं आपको उस ट्रेन में ले जाऊंगा, आप देखिएगा, ये पुरी एक्सप्रेस है, दिल्ली टू पुरी एक्सप्रेस, वो वहाँ शौचालय अगर आप देखेंगे बिल्कुल आधुनिक शौचालय है।
आपने भोपाल की बात कही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने मर्यादा अभियान चलाया हुआ है। मर्यादा अभियान का अर्थ सीधा ये है कि हर घर में टॉयलेट होगा। मैं मध्य प्रदेश बनाओ अभियान चला रहा हूँ, उसमें 5 मुद्दे हैं। नंबर 1 पेड़ लगाओ, दूसरा पानी बचाओ, तीसरा बेटी बचाओ, क्योंकि माइंडसेट बदलना जरूरी है। अगर बेटियों को बचाना और आगे बढ़ाना है तो केवल कानून से ये नहीं होगा। चौथा मैं कहता हूँ हर घर में शौचालय हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अपने घर में शौचालय बनाओ, उसको हमने नाम दिया आपकी जानकारी में मर्यादा अभियान, उसको नाम ही हमने दिया है। और 5वां है नशा मुक्त समाज बनाओ। तो कुल मिला के अपने अपने तरीकों से सब लोग लगे हैं और सारे भारत में इस महत्ता को हर कोई स्वीकार करता है कि शौचालय भी आवश्यकता है, और इसलिए उसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन ये केवल बहस का मुद्दा है, हम नहीं मानते इसको, तो हम क्रियान्वित करके दिखाएंगे। भोपाल को भी हमारा संकल्प है। हम अभी तक तो बहस का भी मुद्दा नहीं था। नहीं, ये देखिए, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं। हमारे नेता तभी जागेंगे जब शौचालय और देवालय को एक स्थान पर लाकर चर्चा होगी, बड़ी तस्वीर की बात हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहस करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो चुपचाप काम करते रहते हैं। हम काम करके दिखाएंगे। जी, मुद्दों के खोज में रहती हैं, मुद्दों की खोज में रहती हैं। तो और आप सैल्वेशन और सैनिटेशन और आप हमारी नब्ज जानते हैं, तभी तो बोला। बहुत निराश हैं। Mr. Sim, you have word. So I think there's no conflict. Why don't we use all the temple to compete, to preach to their followers to have toilet, and then we give the prize to the temple who got the most success. Since there are so many temples, why don't we use them? Because cleanliness is godliness. In every religion, it's the same. Because to be clean is to survive. You don't die. So what we need to do is to go to all the religious leaders, whether it's Hindu temple, mosque, whatever, get all of them to compete for the national prize. Who is the best promoter of sanitation? And then the religious leader, they also have ego, you know. They want to win. The other one is that I understand in India, the multinational and the companies have to pay 2% CSR money. So take this CSR, don't go and put it in other things, put it in toilet first. Yeah. And then we have to make poop culture to pop culture. So we need all the songs and the Bollywood dancing. All these songs must write about toilet, entertaining way, very funny, very serious, doesn't matter. But it has to become pop culture. And I have an offer. Jairam ji is very good with words. Yes. So we can maybe come up with something impromptu. You know, when I became the Minister for Sanitation, I must tell you, Jack, that I went to the Prime Minister and I said we should become a member of the WTO. So he said, but we are already a member of the WTO since 1995. So I said, no sir, this is a new WTO. He said, what is this new WTO? World Toilet Organization. That he was the head of the World Toilet Organization. And I think he's absolutely right. He's talking about songs, we have to pop create songs on toilet. create a pop culture around sanitation. It has to become a media subject, it has to become a political subject, it has to become an obsession with our political leaders. And as I said, and I don't mind saying it, I mean cricket, politics, Bollywood, spirituality, these are all our national obsessions. But ultimately, I agree with you, our salvation lies in sanitation. We can be the most spiritual nation on earth, but if we are going to have 60% of the women defecating in the open, what sort of spirituality is this? So it's a poor reflection on us as a country, and I'm not anti-religion or anything, but I think the fact is he's right. All of us, religious leaders, political leaders, media, corporate leaders, must take it as a responsibility that in the next 5 to 10 years, India will rid itself of open defecation. उमा जी, It's a blot on our society, really. उमा जी, क्यों मंदिर और सिर्फ एक ही इशू के इर्द गिर्द हमने आपकी भी राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आपने मंदिर जी और उसके इर्द गिर्द आपकी राजनीति को देखा है। आप मास मोबिलाइजेशन के लिए मध्य प्रदेश में जानी जाती हैं, गाँव में, महिलाओं में आपकी पैठ है।
आपने कोई पहल क्यों नहीं की इतने वर्षों तक? क्यों आज यहाँ बैठकर आप जयराम रमेश को कह रहे हैं कि आप शहरों में भैया कुछ करो? मैं उनको कह रही हूँ, हम कर नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं ना। जो हो रहा है, शिवराज जी हैं छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह जी हैं, हमारे यहाँ तो निर्मल ग्राम की बहुत अच्छी योजनाएं बनी हैं। मुझे तो जो ये बोल रहे थे उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। अब एक चीज़ और हो जाए सच में, और मैं जो बोल रही ना, ये आप तालियां बजाएं या आपको लगे कि वाह मैंने क्या बात कही, इस भाव से मैं कह भी नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी शादियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे मित्तल ने शादी करी, 100-200 करोड़ खर्च कर दिए, उनको कहिए कि जब वो अपनी बेटियों की शादी करें तो 1000 टॉयलेट गरीबों की बेटियों के लिए बनाएं, बजाय 5 स्टार होटलों में लोगों को डिनर पार्टी दें, और ऐसे लोगों को खाना खिलाएं जिनको डायबिटीज है और जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई हैं, जो एक टुकड़ा मिठाई का खा नहीं सकते, उनके लिए। और जितने भी 5 स्टार होटल बन रहे हैं, जितने रेस्टोरेंट बन रहे हैं, जितने लॉज बन रहे हैं, ये सब के सब अनिवार्य कर दे जाएं। खाने की व्यवस्था करोगे तो जाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, खाना और पाखाना दोनों करने पड़ेंगे। मंदिरों में जो पंडित है, हाँ मंदिरों में भी हो समझाएं, तो लेकिन होटलों में और रेस्टोरेंट में भी हो, क्यों ना समझाएं? वहाँ भी धर्म के लिए लोग जुटते हैं तो वहाँ से क्यों ना संदेश? बहुत अच्छा। मैं उमा भारती से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो काफी अक्सर अनशन पर बैठती हैं। महीने में 2 दिन अनशन पर बैठे भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए। आपको मेरे साथ अगर आप अनशन पर बैठेंगे, सब लोग, सारा देश देखेगा, एक जागृति भी आएगी। मैं दिल्ली में एक भी महिला मजदूर को खुले में शौचालय में न जाना पड़े, बंबई, दिल्ली और कलकत्ता में, इसके लिए मैं अनशन पर बैठूंगी। आप सब बैठेंगे? ओके, डेट फिक्स करते हैं, हम बताएंगे, आपको बता देंगे, ठीक है? We'll have a little register outside to enroll yourself. Mr. Sim, coming back to the pot culture that we were talking about, tell us more innovative ways. How do we convince people? How can one reach out in a place like India? Yes, there are one of the things I have done for India before I come is to write a movie, Bollywood movie story about how a farmer family, whole family suffer different things when they don't have toilets. So the teenage daughter dropped out of school, the mother got bitten by a snake, the wife got molested in the bush, and his son died. It's a very terrible story, but it's also how the corrupt politicians were involved. All this very nice story. Now I want to offer this afternoon to Salman Khan if he were to do it. Or if he don't want, then somebody else will compete to do it. Because this is so important. And also for the supply side, when we drive the demand, when we make it sexy, we have to make micro-franchise, small little factory everywhere, all over India, to produce themselves, to sell themselves, no need to import, make it locally, make it very cheap. And I think that you create jobs along the way. When we teach the village women to sell toilet and earn a commission, they can get $2 every toilet they sell. It's also gender equality. So you create jobs, entrepreneur, gender equality, health, productivity, and the whole country grow because sick people cannot be productive. So the productivity of this country will grow. The hospital investment will go down. You don't need to see so many sick people because half of all hospital beds are caused by poor hygiene and sanitation. शिवराज जी, कोई ऐसा आइडिया जो एक मुख्यमंत्री के रूप में आपके दिमाग में आ रहा हो इनकी बातें सुनकर, जो शायद आप मध्य प्रदेश में करना चाहें? हम तो, मैंने जैसा बताया, पहले से ही अभियान चला रहे हैं, हर घर में शौचालय हो, उसके लिए हमारा अभियान चल रहा है और ब्लॉक के ब्लॉक और गांव के गांव मुक्त हो रहे हैं। शहरों में थोड़ी समस्या बड़ी है और इसलिए उसका समाधान भी हम खोज रहे हैं। आगे जितने मकान बनेंगे, तो अपनी तरफ से हम लोगों ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में हम 15 लाख मकान सरकार की तरफ से जो हमारे गरीब हैं उनके लिए हम बनाने का काम करेंगे। वो मकान बनाएंगे तो जाहिर है टॉयलेट के साथ ही होंगे, और प्राइवेट मकान भी बने तो इतना टॉयलेट सस्ता भी बन सकता है, इतना महंगा नहीं कि आम आदमी उसको, गरीब आदमी भी बना ना पाए, ऐसी स्थिति नहीं है। सवाल उसको प्रेरित करने की है, उसको कुछ सहायता करने की। तो सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रेरित भी कर रही है, सहायता भी दे रही है, मदद करने का काम भी कर रही है, और इसलिए तेजी से ये अभियान चल रहा है। उसके लिए बहुत नए आइडियाज की जरूरत नहीं है, सवाल केवल माइंडसेट बदलने की। अभी अगर किसी आदिवासी गांव में आप जाएंगे तो उसको अभी लगता है कि जरूरत क्या है, मैं तो खुले में चला जाता हूं, मुझे वहां अच्छा लगता है। ये जो मानसिकता है इसको बदलनी पड़ेगी। कई बार आप टॉयलेट बना दें, अंदर नहीं जानी,
बाहर ही जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर हम कंफर्टेबल हैं। तो हमको ये जो मानसिकता है इसको चेंज करनी पड़ेगी। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आज 10,000 12,000 रुपए में एक आमतौर पर एक टॉयलेट बन जाता है, और इसलिए ये बड़ी समस्या माइंडसेट बदलने की है। और उसी को बदलने के लिए आओ बनाए मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत हमने हर व्यक्ति को ये प्रेरित करने की कोशिश की है कि बिना शौचालय के गांव भी शुद्ध नहीं रहेगा, आप भी शुद्ध नहीं रहेंगे, और सचमुच पूरा विकास भी नहीं होगा। उस अभियान में हम लगातार लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। हमको लगा कि इसमें बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, एक सवाल। Okay, my question is to Mr. Jairam. We can get more toilets, we can motivate people to get more toilets, but are you sufficiently equipped for the sanitation process thereafter? The cleansing system of the entire sanitation system. Even if we have the toilets. Even if you have the toilets, is our country equipped to cater to the cleaning of the sanitation afterwards, the entire system? Because that's equally important. Just telling them that they need toilets is one thing, but how are we going to clean the sewage disposal the sewage system and everything, disposal, the bigger picture? See, our first challenge is, as Shivraj Singh Ji has said, you have to create the mindset for the use of the toilets. We can fund the construction of the toilets. Today, the government of India gives 10,000 rupees for the building of an individual toilet. 2 years ago, it was 3,000 rupees. Now, we found large number of toilets had been built, and they were used as go-downs. They were not used as toilets because it was not really a toilet worth the name, and secondly, as he said, there is still a mindset in many parts of the country that we can go out into the open. It's a cheap way of defecation. So we need to create this mindset. You need to build the toilets. You need to provide the facilities for ensuring that the sanitation practices, as you just mentioned, around the use of the toilets, which means ensuring water. And that's why the Open Defecation Free India campaign started in those Gram Panchayats where water is available. Where water is difficult, where water availability is poor, then we have a problem. But I must say that even in a district like Churu in Rajasthan, which is very, very water stressed, thanks to the efforts of a very determined collector, 2 blocks in Churu have already become open defecation free, and Churu will become the first district in Rajasthan to become open defecation free in a couple of months. It all depends on how the administration and the political leadership is able to mobilize the local community, fix the accountability on the Gram Panchayat or the women's self-help group, and create an environment in which people feel that the use of the toilet is not just a source of amusement, but also a source of improved public health for their families. See, the single biggest, we have failed to educate, I have failed to educate, and all of us have failed to educate the country that there is a link between sanitation and malnutrition. There is a fundamental link between child weight, child height, and the prevalence of poor hygiene and poor sanitation practices. And if people get convinced by the use of sanitation their children's future is assured, I'm sure people will embrace toilets. I mean, I'm seeing this in state after state. This year, Himachal Pradesh will be India's 3rd state to become open defecation free. So if every year after year, the Tamil Nadu Chief Minister has already announced that by 2015, Tamil Nadu will become open defecation free. So if every state takes upon this challenge, I think we can really fulfill this target in the next 10 years. Thank you very much, all of you. And I'm sure the next blockbuster in Bollywood, and we can maybe encourage Honey Singh to write a pop culture song on toilets. Thank you so much. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, for that thought-provoking session. Just before we break for lunch, I would request Mr. Dev Bhattacharya, Group Executive President, Corporate Strategy and Business Development, Aditya Birla Group, to come up on stage and present a small token of our appreciation to this esteemed panel. Once again, ladies and gentlemen, do put your hands together for what was one of the most thought-provoking sessions in this particular conclave.